Hello, everyone. A very warm welcome to all of you. I am Nidhi Saxena, and I'm truly delighted to have you all here today. Many of you know me as someone who wears multiple hats. So, I have completed my graduation from Delhi University, and I'm deeply passionate about music. So, in the year 22 to 24, I have completed my master's in music vocal and got gold medal in it. Apart from that, I have had the joy of helping build an entire musical band named Malang Beats from scratch. My husband owns a designing and construction company. I have done interior designing course too, so I also help and support him in his professional endeavors. Along the way, I have realized how much potential lies in the heart of every woman, especially homemakers, because I know urge of earning your own money is very important in one's life. The initiative, the very webinar, is basis out of a deep personal passion of mine, that is empowering women. I have seen how a little guidance, a little encouragement, and the right mentor can completely transform a woman's life, whether it is through creativity, entrepreneurship, or simply gaining confidence. Every woman deserves that chance to shine. And that is exactly why I have invited a truly inspiring guest today, Shalini Beriwal ma'am. She is a homepreneur coach and a powerhouse in the gifting industry. She has helped countless women to take the leap from homemaker to business owners, especially through her sales and marketing program. So today is all about you, the women watching, listening, and wondering if it is time to turn your dreams into action. Let the be your side. Let it be your sign. Let's dive into this conversation and light the spark together. If you have any questions, please free to ask after this her golden words. So Shalini ji, please tell us more about yourself. So thank you, Nidhi, for inviting me today. And thank you, everybody of you, for being here. And Nidhi ka jo campaign hai that she wants to empower women and she wants to make sure that they live to the best. तो वही मेरा कैंपेन है. तो बताइए निधि क्या बताऊं मैं. एंड प्लीज ये ना एक ओपन फोरम है, हम बहुत थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, सो एवरीबडी कैन टॉक. देयर इज नो इश्यूज अबाउट कि किसने क्या पूछना है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू नो, टेल मी निधि. So Shalini ji, you are successfully turned your passion into a thriving business. What inspired you to become a homepreneur and what was the turning point in your journey? तो एवरीबडी यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आई एम नॉट अ ग्रेजुएट, और मैं एक हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई हूँ. मैंने जब मेरी 12 कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन करी तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती थी और बहुत रैगिंग हुई मेरी. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. और 19 ईयर्स में आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज अ बहू फॉर ऑलमोस्ट 20 years in Kanpur, and then the family went into a financial crisis. हर एक के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है मोस्टली. और उस समय मैंने डिसाइड किया कि बहुओं को काम नहीं ना करने दिया जाता मारवाड़ी घरों के अंदर, बेटियों को. अब तो चीज़ें बदल गई है, पर उस समय ऐसा ही था. और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे कि मुझे अलाउ करें वो काम करना. मैं क्राफ्ट में बहुत ही अच्छी थी, और मेरे फादर एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए कपड़ा जॉब वर्क का करते थे. बहुत ही बड़ी यूनिट थी, बट आई वॉज नॉट अलाउड. बट द वे मैं देख रही थी बड़े घरों के अंदर वो शान शौकत बनाने के लिए खर्चे उतने के उतने रह जाते हैं, चाहे हमने उतने पैसे कमाए हो या नहीं कमाए हो. सो आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली, और मैं दिल्ली एक्सपोर्ट करने आई यहाँ पर. लेकिन जब तक मैं आई मेरे पापा काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी थी, एंड ही वॉज नॉट इन द स्पेस टू हेल्प मी. गिफ्ट पैकेजिंग बिल्कुल भगवान ने मेरे रास्ते में भेजी, किसी फ्रेंड ने आया एंड आई स्टार्टेड कि भाई कुछ बना दो, और मैंने बनाया. वो एक अपने आप में पूरी फिल्मी स्टोरी है.
एंड देन ईयर 2002 आई डिसाइडेड कि मैं गिफ्ट पैकर बनूंगी। तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल बेहोश है, भाई के करा है, वी आर ऑल्सो मारवाड़ीज, के करा है तू, रुपया मैं तेने दे दूंगी, मशीना लगा के फैक्ट्री लगा ले, यो कोई काम करने वालों को नहीं, डब्बा बना कर कोई घर चलायो है के। उस समय गिफ्ट पैकेजिंग वॉज नॉट बिग एंड इट वॉज सपोज टू बी डन बाय विमेन जिनके घर के मेन काम नहीं करते हैं, या इस टाइप का एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा था। मैंने कैलकाटा में, मेरे नानी बाड़ी है वहाँ पे, आई वेंट एंड रिसर्च द बिजनेस, वेंट टू मुंबई, वेंट टू दिल्ली। मैंने देखा कि यहाँ पोटेंशियल है एंड आई डिसाइडेड टू टेक इट एज अ प्रोफेशन। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज के दिन मैं कंसल्टेंट हूँ फॉर द ब्रांड्स लाइक बीकानेर वाला, ओम स्वीट्स, help people just give me 1 minute, help people opening their shops. I'm a coach and I teach business and 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। My son has studied outside, has joined me into this business. We do multi-crore turnover into our gifting business. I trade into food. तो 7 to 8 वर्टिकल्स हैं जहां मैं काम करती हूँ, और मेरा मिशन और विजन है कि जो होम मेकर विमेन है उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, स्पेशली इन द वर्टिकल ऑफ गिफ्ट पैकेजिंग एंड ऑल्सो इफ नॉट गिफ्ट पैकेजिंग, मेनी ऑफ द विमेन वो ऑलरेडी काम कर रही होती है, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाती हैं। डू यू अग्री? काम कर लिया पर बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाती हैं, तो टीचिंग देम हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस। तो right now I'm 64. I'm a national initiative head with Fiki Flow. मैं उनके 20 चैप्टर्स के साथ काम कर रही हूँ into wedding vertical. I'm also consulting, designing, coaching. तो मुझे लगता है कि God has been kind और मेरे लिए एक अच्छा रास्ता बना हुआ था। एंड निधि, आज आपने मुझे यहाँ बुला के, this is another very big thing for me to be with the people जो अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। We are thankful, Shalini ji, for having you amongst us. Yeah. शालिनी जी, जैसा आपने बताया, कई लेडीज होम मेकर्स जो होती हैं वो करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनको उनके पास या तो टाइम की कमी होती है, क्योंकि घर अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा नेवर एंडिंग जॉब है, जहाँ बिल्कुल पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है। बिल्कुल। तो उनके लिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, और वो भी गिफ्टिंग बिजनेस, हाउ इज इट पॉसिबल? वो कैसे अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें, कैसे अपना अपने घर के साथ इसको कैसे मैनेज करें? आप इसके लिए क्या कहेंगी? तो देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताऊं, मैं 20 साल होम मेकर रही हूँ, और 36 जनों के परिवार में मेरी सासू जी, उनके 4 मतलब 5 देवरानियां जेठानियां, फिर हम बहुएं, एंड देन हमारे बच्चे, मतलब 36 पीपल इन वन हाउस ऑफ 4 फ्लोर्स। वो पुराने जमाने के वाह। नहीं होते थे घर जो जंगले हाँ। वाले, उसमें मैं रहकर आई हूँ। तो आई अंडरस्टैंड फुल्ली व्हाट यू आर सेइंग। सबसे पहले, और उसमें लड़कियां मुस जाती हैं कई बार जो काम करना चाहती हैं। ऐसा नहीं होता कि फैमिली को उनको टॉर्चर कर रही होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो सोसाइटी का एक तरीका है जहाँ पे हम कुछ भी होने से पहले बहू, बेटी, बहन है, एंड देन वी आर एनीथिंग एल्स। तो मुझे ये लगता है इट्स अ नंबर 1, द टाइम मैनेजमेंट एंड देन लुकिंग एट योर एम्बिशंस। गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो घर से किया जा सकता है। मैंने भी घर से किया। मेरा बेटा 14.5 साल का था, मेरी बेटी 16 साल की थी, और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी उस समय। तो कि भाई पैसे की भी किल्लत थी। सो यू नीड टू मैनेज टाइम, यू नीड टू लर्न टू डू द बिजनेस। प्रॉब्लम बिजनेस करने में नहीं आती है, मैनेजमेंट में भी नहीं। घर अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट मोस्टली मैंने ये देखा है, विमेन को प्रॉब्लम सबसे पहले इसलिए आती है कि फैमिली डोंट ट्रस्ट देम कि ये कुछ कर पाएगी। मैनी फैमिली ट्रस्ट हम्म। करती है तो वो खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है कि मैं कर पाऊंगी। तो द इम्पॉर्टेंट इज दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्क। उसके लिए 2 चीजें, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो प्लीज लिखें। कैपेसिटीज एंड केपेबिलिटीज मीन्स, नंबर 1, मेरी केपेबिलिटी क्या है। अब मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश बोलना सीख लिया मैंने, आई स्पीक सो वेल। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि इंग्लिश के ट्यूशन ले लो, तो नहीं ले सकती ना मैं।
तो मेरी कैपेबिलिटीज टू द वर्ड्स बेस्ट क्या है? सो आई एम अ होम मेकर, मैं एक घर चलाने वाली लड़की हूँ। तो मेरी कैपेबिलिटीज मीन्स मैं 2 घंटा निकाल सकती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, मैंने लंच जल्दी बना लिया और आई ऑर्गेनाइज अ हेल्प, बिल्कुल, ताकि वो शॉपिंग वॉपिंग कर रहा है तो मैं मेरे लिए 2 ढाई 3 घंटे का वो समय निकालूं, अपने आप को केपेबल बनाऊं, अपने आप को सिखाऊं जो भी वर्टिकल में जाना। मैं यहाँ गिफ्ट पैकेजिंग की बात ना सिर्फ ना करूं, मैं बहुत अच्छी हूँ कुकिंग में तो ये मेरी कैपेबिलिटीज है। मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटीज है। मेरा कलर सेंस बहुत अच्छा है, ये मेरी कैपेबिलिटीज है। मुझे कैंडल बनानी नहीं आती तो मैं सीखूं, कि मेरी वो कैपेबिलिटीज है। सबसे पहले मैं अपने अंदर वो कैपेबिलिटी क्रिएट करूं कि मैं एक बिजनेस कर सकूं। हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, बट उसको जानना कि भाई बिजनेस करने के लिए क्या, इज इट माय कैपेबिलिटीज, देन जो बिजनेस में चूज करूं, क्या मेरी कैपेबिलिटीज उस कैपेसिटी में है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिजिटल बिजनेस करना चाह रही हूँ तो क्या मैं डिजिटली एजुकेटेड हूँ? तो अगर मैं आज गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना चाह रही हूँ, फूड का बिजनेस करना चाह रही हूँ, फैशन का बिजनेस करना चाह रही हूँ, तो मेरी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को मैच करना है। कैपेसिटी टू इन्वेस्ट टाइम, कितना समय है मेरे पास में, मेरे पास पूरा दिन है, मैं एक अलग लेवल पे बिजनेस करूंगी। मेरे पास 3 घंटे हैं, मैं एक अलग लेवल पे बिजनेस करूंगी। मेरे पास 2 घंटे, मैं एक अलग लेवल पे बिजनेस करूंगी। कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं एक टीम बनाऊंगी। तो मेरे पास घर में टाइम है कि नहीं है, पर मैं बंदे रखूंगी जो मेरे लिए बिजनेस करेंगे, जो मेरे लिए काम करेंगे, मैं उसको सुपरवाइज करूंगी। मेरे पास में पैसा कम है इन्वेस्ट करने को, तो मैं एक नीश पकड़ूंगी। एक अब पूरे कपड़े की दुकान में जाओ तो जहाँ पे साड़ी भी है, लहंगा भी है, सलवार कमीज भी है, तो आपको कैपेसिटी टू डिजाइन ऑल चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सलवार कमीज वाले पे जा रहे हो, साड़ी पे जा रहे हो, तो आपको कैपेसिटी टू डिजाइन ओनली वन चाहिए, राइट? इसी तरह से गिफ्ट पैकेजिंग के नीश में भी थिंक ऑफ द नीश। तो अगर आपके पास टाइम कम है, पैसे कम है, रिसोर्सेज कम है, वॉट एवर इट इज, देन यू कैन टेक अ नीश रादर देन टेकिंग इट एज अ होल बिजनेस। तो इट्स अ वेरी डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन, कभी आप चाहेंगे तो मैं उसको और आगे लेके जाऊंगी। अभी कटिंग इट शॉर्ट, अपने आप को इस लायक बनाना कि मैं जो बिजनेस करना चाह रही हूँ उसमें अपनी कैपेसिटीज को बनाऊं, वो मैं गूगल से बनाऊं, क्लासेस ज्वाइन करके बनाऊं, अपने कैसे करूं, दैट्स योर चॉइस। देन कैपेसिटीज, कैपेसिटी टू टाइम इन्वेस्ट, टाइम, एनर्जी, मनी, यू नो, उनको मिलाकर एक बिजनेस बनता है। तो यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, यू नीड टू नो मोर। हमें किसी ने बोल दिया तू तो ये काम बड़ा अच्छा करते हैं, हम शुरू हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए। पर्स उठाया, बाजार निकल गए, कुछ चीजें ले आए और शुरू हो गए। कुछ मम्मी ने खरीदा, कुछ भाभीियों ने खरीदा, कुछ बहनों ने, कुछ दोस्तों ने खरीदा, एंड वी आर वेरी हैप्पी वी हैव स्टार्टेड। पर वो भी खरीद के थक जाते हैं एट वन टाइम, और फिर वो चीजें हम गिफ्टिंग में यूज करते हैं। और ये इट्स द स्टोरी एवरीवेयर, because we do not educate ourselves. So please educate, make yourself capable, understand your capacities, understand your strength, कि आपकी strength क्या है, understand your weakness। मेरी weakness है कि मेरे पास जितना टाइम है उतना ही है, मेरी weakness है कि मैं यही कर सकती हूँ सारा दिन हम इसी के साथ। जैसे मेरी weakness थी कि मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी जीरो, मेरी weakness है कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज नहीं, तो मैंने अपने लिए लोग रखे हु ऑर्गेनाइजेज मी। बट इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया तो ये सब चैलेंज थे, बट देन ग्रेजुअली आई एजुकेटेड माई सेल्फ। तो पता है मैं जब मैंने काम शुरू किया तो 3 कमरे के फ्लैट से मैं काम करती थी, और 2.5 साल में मैं 4 करोड़ पे पहुंच चुकी थी। और उसके बाद में मैं ग्रो नहीं कर रही थी, तो मुझे लगा शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैंने 52 ईयर्स की उम्र में मुंबई में एसपी जैन WMP प्रोग्राम किया, BCI किया, 4 साल लैंडमार्क किया, अपने आप को एजुकेट किया ताकि मैं ग्रो कर सकूं उस स्पेस के अंदर। मुझे लग रहा था मेरा ग्रोथ वहां से नहीं हो रहा है, सो मैंने मेरी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी टू बिजनेस को बढ़ाया, सो दैट आई ग्रो माई सेल्फ, एंड टूडे आई एम हियर। सो दैट्स द मंत्रा ओवर देयर। Anybody has a question regarding that, I can answer it at that time also. अभी हम आंसर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपके मन में है अभी? Is there is any question anybody has? Otherwise we move forward. Ma'am, yes, I So, have a Shalini, question. Somebody has a please, question. Yes. please go ahead. Yeah, ma'am, actually, whatever you said is right. So whenever we initially start, we have that zeal and we start and reach a point where we are able to reach in our contacts, our relatives. But after that, to reach a point that is very hard. I mean,
getting more audience, wider reach is very much difficult. So, like, हाँ what do you see, suggest to take forward? हाँ तो Shravani, right? It's Ravani, right? Yes, ma'am. हाँ, so Shravani, we're missing you on the camera, but let me tell you one thing. Why is it hard? Have you ever asked yourself this? Because you have not trained yourself into the skill of marketing. आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, आपने शायद एक अच्छी, और आपने वो बनाया जो आपको अच्छा लगता है. हैव यू स्टडीड द मार्केट? तो एक ना सेइंग है, सेइंग नहीं है, रिसर्च है रादर. एक आदमी बहुत अच्छा बर्गर बना रहा है और एक आदमी बिल्कुल गंदा बर्गर बना रहा है, बिल्कुल गंदा, और गंदे वाले के सारे बिक गए, अच्छे वाले के नहीं बिके. क्यों? वाई? पहले क्या Lack of marketing? Yeah. नो, Lack of marketing. पहले Sale क्या and क्या marketing. Sale and marketing both. नो, बिकॉज जहां गंदा बर्गर बिक रहा था वहां सारे भूखे थे. वो गंदा हो या अच्छा, वो बर्गर मिल रहा, उन्होंने खा लिया. जहां अच्छा बर्गर बिक रहा था सबका पेट भरा हुआ था. They were not hungry. So you need a hungry client. हंग्री क्लाइंट कौन होता है? आप जो भी बिजनेस कर रही हैं, जहां पे उसका एक चैलेंज है जो पूरा नहीं हो रहा, जहां पे उसकी एक भूख है जो पूरी नहीं हो रही, उसकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, आप किसी की किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, तो एक आपके पास में हंग्री क्लाइंट है. वी डोंट वर्क लाइक दैट. हमें लगता है सामने वाला सक्सेसफुल है तो चलिए बिजनेस कर लो. यू हैव टू सिट, पॉज. यू वांट टू डू अ बिजनेस, look at your capacities, capabilities, choose a business, find out कि इसमें कस्टमर कौन है. फिर हमें पता है क्या लगता है, स्पेशली गिफ्ट पैकेजिंग में, सारे मेरे कस्टमर हैं, वेडिंग वाले भी कस्टमर है, बच्चा करेंगे वो भी कस्टमर है, फेस्टिवल. नो, इफ यू थिंक एवरीबडी इज योर कस्टमर, नोबडी इज योर कस्टमर. मैं हमेशा एक एग्जाम्पल सबको देती हूँ. फुटपाथ के ऊपर भिंडी बिक रही है 20 रुपए किलो, दुकान पे 40 रुपए किलो, और एक मॉडर्न बाजार लमाश में 100 रुपए किलो. क्या लमाश में जो लड़की 100 रुपए किलो खरीद रही है, फुटपाथ से खरीदेगी वही भिंडी 20 रुपए किलो में? वो कभी नहीं खरीदेगी. उसको वो हाइजीनिक सस्टेनेबल भिंडी चाहिए, ऑर्गेनिक भिंडी चाहिए. फुटपाथ वाला जो है वो कभी भी, कितना भी उसको बोल दो दिस इज मोर हाइजीनिक, दिस इज मोर गुड, यू बाय इट फ्रॉम द टॉप शॉप, वो नहीं खरीदेगा, है वो भिंडी. तो आइडेंटिफाइंग योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना, अपने प्रोडक्ट को उससे मैच करना, उसकी शादी कराना अपने क्लाइंट से, एंड देन हैविंग द मार्केटिंग. और इंडिया में तो जुगाड़ मार्केटिंग सबसे ज्यादा काम आती है. और मार्केटिंग हम कम क्यों नहीं पाते? हमारे दिमाग में एक कीड़ा है कि मार्केटिंग में पैसा लगता है, एड रन करने में पैसा लगता है. सो देयर आर मेनी वेज ऑफ ऑर्गेनिक. टुडे लेट्स टॉक. टुडे निधि ने मुझे इनवाइट किया आप लोगों से बात करने के लिए. ये निधि का मिशन है, मेरा भी मिशन है, पर मैं हो क्या रहा है यहाँ पे? When you know me who I am, isn't this a marketing? आई एम आस्किंग. कोई सिखाएगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा आपको एक ओपन फोरम में कि मैं यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आई हूँ. मैं यहाँ आई हूँ आपको ऑफ कोर्स नॉलेज शेयरिंग के लिए, पर क्या मेरी मार्केटिंग नहीं हो रही? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, यूज चैट. हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है. Yes, definitely. एंड देयर इज नो मनी बीइंग स्पेंट. निधि और मैं दोस्त हैं. निधि को मैंने पूछा तुम्हारे उदयपुर की लड़कियां क्या करती हैं? शी सेड मोस्टली आर होम मेकर. आई सेड डोंट दे वांट टू डू एनीथिंग? शी सेड हाँ बिल्कुल वो करना चाहती हैं पर उन्हें पता नहीं है. मैंने कहा चलो मैं उन्हें सिखाऊंगी. निधि खुश हो गई कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, ये मेरा भी मिशन है, मेरा दोनों का मिशन था. बट इफ यू सी इन दिस मार्केटिंग देयर इज नो मनी बीइंग स्पेंट. हैव यू एवर थॉट ऑफ डूइंग दैट? आपके आंटी अंकल सब जने होंगे, इतने बड़े बड़े सोशल सर्कल्स होंगे, क्या आपने कभी कोशिश की? तो ये No. करा क्यों नहीं? क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है. तो इंडियन विमेन स्पेशली, इवन इफ दे आर एजुकेटेड, दे आर लिमिटेड टू देयर ओन फील्ड, कि जो उनकी स्पेशलाइज फील्ड में उन्होंने एजुकेशन किया होता है, या गूगल देवता या इंस्टाग्राम और मे बी पिंटरेस्ट इफ दे आर इनटू क्रिएटिव फील्ड, लेकिन उसकी इंटरनल नॉलेज इज नॉट देयर. तो आपके लिए ये सारा मुश्किल है क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटीज को यूज नहीं किया है और अपनी कैपेबिलिटीज को मार्केटिंग में बढ़ाया नहीं है, इसलिए ये आपको मुश्किल लगता है. डू आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, ma'am. I need to open the gates of marketing. Thank you.
100%. And also to see whether the product you are making or the service you have is competent, is matching with the client you are pitching. कई बार बहुत अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस गलत क्लाइंट के पास में होता है, उसकी वजह से आपको क्लाइंट नहीं मिलता. So you really need to look at that. ठीक है निधि जी, हाँ जी. what else do you want me to answer? Tell me. सो फाइनली आपने कहा कि जिनका माइंड सेट हो जाता है कि उन्हें कुछ करना है, मतलब पहले अपना माइंड सेट करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, अपनी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करके. सो कॉमन माइंडसेट ब्लॉक कौन से होते हैं जिसमें लेडीज अटक जाती हैं कि अब इससे आगे कैसे बढ़े, और वो कैसे उनको, मतलब वो कैसे उससे निकल सकती है? तो अगर मैं ये बोलूं ना निधि आपको, सबसे पहले ब्लेम गेम. माई फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग, मेरा सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा हस्बैंड ये मेरा वो. भैया जिंदगी जैसी है वैसी है. वहां से बाहर निकल के ये सोचो ये तो ऐसे ही है, नाउ व्हाट, एंड देन स्टार्ट प्लानिंग. दैट्स वन. नंबर 2, फियर, डर ऑफ सोसाइटी. मैं ये करने जाऊंगी और मैं सक्सेसफुल नहीं होंगे. प्लीज यूज योर चैट टू से वेदर यू रिलेट टू मी और नॉट. आप प्लीज चैट पे ये जरूर लिखें कि आप इस चीज से रिलेट करते हो कि नहीं करते हो, ताकि मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ. हाँ. और फिर एक डर, लोग क्या कहेंगे, मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, कि वो क्या है, चौबे जी चले छब्बे जी मिलने, दूबे जी बन के आ डूबे गए, जी बन कि के. लोग मुझे क्या करेंगे, लोग मुझे ये डर गए. अच्छा, फिर हमने एक एज अ होम मेकर कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, और अब ये पैसे भी खत्म हो गए, तो मैं कहाँ जाऊंगी. कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पैसे कम है घर के अंदर, पर मैंने वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो हम उसको लूज करने से भी डरते हैं. और मोर देन द मनी लूजिंग इज द प्रेस्टीज लूजिंग, सोसाइटी में नेम लूजिंग, और ये भी कि लोग बोलेंगे क्या, ठीक है क्या कहेंगे ये. तो ये जो सोसाइटी का जो इतना प्रेशर है, व्हेन आई केम टू दिल्ली, माय बेस्ट फ्रेंड, उसने लास्ट डिनर पे मुझे बुलाया, उसके और उसके हस्बैंड ने, मैं और मेरे हस्बैंड गए. तो उन्होंने कहा, शालिनी तुमने जिंदगी में कभी बिना कार के जीवन भी नहीं बिताया, नौकरों के बिना जीवन नहीं बिताया, और तू कह रही है मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ और नया सिरा से बिजनेस करूंगी, 6 महीने में तू वापस आ जाएगी यहाँ पे. तो मैंने ना अपने आप से पूछा, आई आस्क्ड माई सेल्फ, खोने को क्या है और पाने को क्या है. मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हर एक से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, अपने आप से पूछिए, खोने को क्या था. इज्जत थी. अगर सक्सेसफुल नहीं होती, वापस आती, तो ससुराल वाले भी मजाक उड़ाते कुछ कुछ, और समाज वाला भी हो सकता है पूछते. प्यार कम नहीं करते मेरे ससुराल वाले, लविंग पीपल, राइट. पाने को क्या था, पूरी जिंदगी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, एक फ्रीडम टू लाइफ, फ्रीडम टू बी द ओनर ऑफ योर ओन लाइफ. तो मैंने सोचा अगर खोने के लिए सिर्फ यही है कि थोड़ी पढ़े गए गई थी बनने, ये हो गया वो हो गया, आई विल टेक इट एंड टुडे आई एम हियर. लेकिन अगर मैंने वो स्टेप नहीं लिया होता, तो हमारे घर की और भी बहुएं हैं जिन्हें मैं देख रही हूँ, तो मैं टिंडे भिंडी ही कर रही होती भाई. सो अपने आप से पूछो कि ये मेरे पास जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, 25, 30, 40, 50 लाख, 2 लाख रुपया जो लगाना है, ये खोने में डरना है कि जो पाना है उसमें डरना है, लोग क्या कहेंगे उसमें डरना है, कि मैं क्या बन सकती हूँ उसमें डरना है. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने आप को बिना कैपेबल बनाए, बिना अपनी कैपेसिटीज को जाने, आगे निकलने की कोशिश करते हैं. इट इज लाइक क्लास 1 के बच्चे को कहते हैं क्लास 10 का एग्जाम दे दे तो, राइट. और फिर वो भी अकेले करना चाहते हैं, अकेले बाजार भी खुद चले जाएंगे, बना भी खुद लेंगे, सजा भी खुद लेंगे, फोटो भी खुद ही खींचेंगे, इंस्टाग्राम भी खुद ही बनाएंगे, बेच भी खुद ही, सब कुछ खुद कर लेंगे, और बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. 3, 4, 5 दोस्त हैं, सेम बिजनेस में ना हो, चाहे आज मेरे को जरा सी भी कोई मुश्किल होती है, मैं कहीं पे अटकती हूँ, फट से मैं अपने कोई स्टूडेंट से बात करूंगी, कोई और लोगों से बात करूंगी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, एंड आई विल मूव आउट ऑफ इट. हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर लाइफ
कि जिनसे आप अपनी बिजनेस रिलेटेड इन सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं? है? डू यू हैव? वेयर? और वो भी ऐसा व्यक्ति जो आपको रियल सेंस में एजुकेट कर सके कि नो, गो लाइक दिस इफ इट इज नॉट वर्किंग, और डू लाइक दिस और इफ इट इज नॉट वर्किंग। डू यू हैव एनीथिंग लाइक दैट? नो। तो ये सारे जो मेंटल ब्लॉक, फिर अपनी कैपेसिटी पे डाउट करना। हमारी शादी हो गई, हमने बच्चे पाले, बच्चे पैदा किए, फिर हम बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अब नाउ वी आर रेडी कि भी बच्चे स्कूल जाने लग गए या कुछ, तो अब हमें डर लग रहा है इस चीज से भी कि क्या हम कर सकते हैं। फैमिली भी ओके तू कर रहा है तो कर ले, पर अब हमें अपने ऊपर डर लग रहा है, हम अपने ऊपर से घबरा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें जो अपने ऊपर है। सो यू नीड टू बी मेंटली फ्री। यू नो, आई एम अ स्पिरिचुअल नरेटर। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। रोज सुबह 4:30 बजे मैं 15 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और वो बहुत सारे लोग उसको सुनते भी हैं, उनको भेजती हूँ, एंड दैट कीप्स मी गोइंग, that keeps me going. That 15 minutes of morning dose to my head keeps me motivated. Or try this, it works like crazy. So अपने आप को सराउंड करें ऐसे लोगों के साथ में जो आपके ग्रोथ के भागीदार बने, जो आपके साथ में खड़े हों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो माइंड सेट है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, और ये जो रोंदू विक्टिम मोड है ना, विक्टिम मोड, मैं बेचारी, मैं दुखियारी, किम क्रोमी कुत्र गच्छामि पति तो दुख सागरे, क्या करूं दुख के सागर में डूब गई हूं, बिकॉज आई एम इन इंडिया। मूव आउट ऑफ इट, मूव आउट ऑफ इट। जिंदगी जैसी है वैसी रहनी है, उसी में से हमें अपना बेस्ट निकालना है। एंड आई हैव डन इट, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव डन इट। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनके पांव कांपते थे, जिन्होंने अपनी फैमिली से छुप कर फीस भेजी और उन्होंने प्रोग्राम किया। टुडे द फैमिली हैज गॉट देम शोरूम्स मेड सो मच। एक कदम तो बढ़ाओ, एक कदम तो बढ़ाओ, दुनिया आपके साथ हो जानी है, पर आगे आने का पहला मन तो बनाओ। ये मन, ये चित्त, सबसे पहले वहां अपने आप को सॉलिड करिए और आगे निकलिए। आप वहां से, nobody can stop you, nobody can stop you, I can tell you that, nobody, nobody. हाँ जी निधि, so I hope I've answered your question. यस, थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू। शालिनी जी, आपसे जब मेरी पहले बात हुई थी तो आपने मुझे कहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट। अभी हमारे बीच में जैसे ये अंजू गिरी हैं, अंजू गिरी मेंटल हेल्थ में इनका नाम है। ये इन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हुए हैं, इन्होंने नेशनल लेवल तक के अवार्ड्स जीते हुए हैं। शी इज टू गुड। तो ऐसे ही पर्सनल ब्रांडिंग, अगर ये वाला बिजनेस है, जैसे हम कोई भी वर्क फ्रॉम होम हम कुछ भी करते हैं, तो इसमें पर्सनल ब्रांडिंग व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? So you want me to answer, you want Anju ji to answer? नो, आई वांट यू टू आंसर। Okay, शी इज एन thank you. एग्जांपल ऑफ इट। Yeah, so Anju ji, welcome here, and we are very fortunate to have you here, and maybe we would like to have a one-to-one conversation with you regarding what you do and how you can contribute to women. So when we talk about personal branding, आज आप मुझे सुनने क्यों आई हैं यहाँ? बिकॉज यू हैव अ नेम। So what is that? A personal branding. तो लोग आपको सुनने कब आते हैं? लोग आपसे बिजनेस कब करते हैं? लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपका संग, आपका नाम खरीदते हैं। आप लुई वुइटन का बैग क्यों खरीदते हैं? लुई वुइटन इज अ ब्रांड, राइट? सो व्हाई डू यू गो टू अ स्पेसिफिक मिठाई शॉप ओनली? व्हाई डू यू गो टू द पर्सनल ब्रांडिंग? गिव्स यू ट्रस्ट, लोग आप पे विश्वास करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प्स यू बीइंग एन एक्सपर्ट, प्रूविंग योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। जिस समय लोग आपसे रिलेट करते हैं, जिस समय लोग आपको एज एन एक्सपर्ट जानने लग जाते हैं, आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है, तो एक कनेक्टिविटी बनती है। आज मैं कहीं भी जाती हूँ, ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो पीपल कम टू मी, आर यू शालिनी बेरीवाल? यस। फॉलोवर सिर्फ 25,000 हैं, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत फोकस नहीं रहा कि नंबर्स की कम्युनिटी बनाई जाए, बट people connect with you. Once you are a brand, your voice is being heard. और जब आपकी वॉइस सुनी जाती है, तो उस समय वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है आपकी अपनी लाइफ के अंदर भी, और आपकी आसपास भी, और जो लोग आपके साथ जुड़े होते हैं उनके साथ भी।
एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरा एक सब्जेक्ट है, हाउ टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड, और उसका एक पूरा स्ट्रेटेजिकल एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे घर में जब मैं फाइनेंशियली दिक्कत में थी ना, तो खाने के पैसे कम थे, लेकिन मैं पीआर कंपनी को पूरे पैसे दे रही थी, मैं मजाक नहीं कर रही। सो पीआर कब, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मेरा नाम बन गया ना तो ये बिजनेस आएगा। तो मेरे पापा मारवाड़ी कहते थे, बेटा नामी चोर पकड़ो जावे, नामी साहूकार पीसा कमावे। तो जो नामी साहूकार पैसा कमावे, नामी साहूकार पैसे कमाता है, मींस अगर आपकी पर्सनल ब्रांड बन जाती है तो पैसा अपने आप आता है। तो अगर आप देखें आज इंडिया में पर्सनल ब्रांड किसकी है? मोदी। तो हाउ इंडिया हैज बिकम फेमस? बिकॉज मोदी क्रिएटेड अ पर्सनल ब्रांडिंग एसोसिएटेड विद दिस नेशन। अगर आप उनकी हर चीज को ध्यान से देखेंगे, हर चीज एक इवेंट बन जाती है। कोविड के अंदर थाली बजाओ, आज दिए जलाओ, एवरीथिंग इज एन इवेंट। सो इट्स ऑल रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग, एवरीथिंग। सो एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू एट ऑल। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ अगेन आपको अपने आप को जानना है और उसके तरीकों को जानना है। जी, थैंक यू। जी या शालिनी जी, आप कई लोगों का ये विश्वास है कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें एक बहुत अच्छी बिग कैपिटल की जरूरत होती है। तो हाउ डज योर प्रोग्राम हेल्प women leverage skills and creativity over money to build a successful gifting world? तो निधि, यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूंगी, बिजनेस टू बिजनेस भी ये मतलब डिपेंड करता है। अगर अब आपने कोई फैशन के बिजनेस को करना है ना, तो फिर आपको टेलर चाहिए, मास्टर चाहिए, एम्ब्रॉयडर चाहिए, जगह चाहिए, उसको बिठाओगे या सोर्स करोगे। गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो घर के कोने से हो सकता है। आप अगर मेरा प्रोग्राम कर रही हैं तो फीस के पैसे तो दे रही हैं, आप समझिए। लेकिन लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, अगर आप कोई प्रोग्राम करके कर रही है तो आपका टाइम कम है टू ग्रो, मींस आपको एक रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और जो कि एक एक्सपीरियंस बंदे का है जो इसी बिजनेस में 23 साल से है और वो उसका सारा दे रहा है, वो है। बट अदरवाइज इफ आई टेक इट गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस एज अ होल, तो आप एक घर के कोने से, कोई मशीनें नहीं चाहिए आपको, और आप खुद अकेले उसको शुरू करके, घर में जो मेड्स वगैरह होती हैं, ऑर्डर आए तो उनसे हेल्प लेके शुरू कर सकते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड विद द एज लो इन्वेस्टमेंट एज 10,000 रुपीज इफ यू आर नॉट पेइंग मी फॉर द फी। लेट मी बी वेरी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपके पास चॉइस होता है। मुझे लग गए कितने साल, मुझे लग गए ऑलमोस्ट 7-8 करोड़ पे पहुंचने में 10 years लग गए। लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज देयर, लॉट ऑफ लर्निंग वॉज देयर, बहुत सारी चीजें पता नहीं था। अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी प्रोग्राम किया, प्रोग्राम के ड्यूरेशन में कमाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में मैं आपको अगर पिक्चर शेयर करूं इन द ग्रुप, तो कोई शाहरुख खान के साथ में अंबानी हाउस में पैकिंग कर रहा है, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई डेमोज कर रहा है। तो वो इतनी क्विकली उनकी जिंदगी में कैसे आ गया? बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ। बट जो आपका प्रश्न है, गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस को बहुत थोड़े से रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कुछ भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बिजनेस itself is a low investment business, number 1. number 2, India is a handcrafting nation, तो ये हमारे ब्लड में है, हमारे आसपास में है। तो अगर आप लेवरेज कर रहे हो अपने आसपास के कारीगरों को, तो और पैसा उसमें कम है। इंस्टाग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री एज अ मार्केटिंग मीडियम, फेसबुक इज एब्सोल्युटली फ्री एज अ मार्केटिंग मीडियम। अपनी फैमिली को लेवरेज करना, आप कहोगे जी परिवार तो खरीदता है तो उसको फ्री में चाहिए, तो उन्हें बेचने के लिए नहीं, उन्हें मीडियम की तरह यूज करना, कि ताकि वो आपको आगे रेफरल्स दे सके। सो इट इज नॉट हाईली इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस। मैंने जब किया, मैं तो बहुत दिक्कत में थी उस समय किया मैंने, अगर इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होती तो मैं कर ही नहीं पाती उससे। तो इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट। शालिनी जी, डेफिनेटली आप जो कह रही हैं
अच्छा लग रहा है सुनने में, कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, बट स्टिल कोई भी अगर जो बड़े बड़े कॉलेजेस, स्किलफुल कॉलेजेस खुले, वो इसीलिए खुले ताकि आप ट्रेन होके अगर मार्केट में आते हो तो डेफिनेटली आप जल्दी ग्रो करते हो और आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है क्योंकि आपको पता है यू हैव नॉलेज। और अगर हम एब्रप्टली ऐसे ही कुछ भी शुरू कर देते सब, कुछ लोग होते हैं जो बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि हम अपने छोटे से स्किल से शुरू करते हैं, ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, देन दे विल टेक टाइम। डेफिनेटली मार्केट में वो भी अपनी जगह बना लेंगे बट दे विल टेक टाइम। बट 100%। जो जो ग्रेजुएट होके और जो प्रॉपरली अपना ब्रश अप होके आता है तो वो अच्छी तरह मार्केट को समझता है और फिर वो मार्केट में अपनी स्टैंडिंग बनाता है। तो आपका कोर्स करने से डेफिनेटली फायदा तो होगा ही, अगर हम आपके कोर्स के साथ शुरू करेंगे तो सबको फायदा होगा। बट स्टिल कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो मार्केट में उतरता है, तो वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आज आपके पास बीकानेर वाला है, आपके पास जोधपुर मिष्ठान भंडार है, आप बड़े बड़े ब्रांड से फ्रिक्वेंटली बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, दैट इज योर एक्सपीरियंस, 23 years एक्सपीरियंस। Right. बट जो Just नया नया हमारे जो ये नई गर्ल्स हमारी जो उतरेंगी आएंगी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके, आपसे ट्रेनिंग ली, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, डेफिनेटली आप उनमें कॉन्फिडेंस भी भरेंगी तो उनमें कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत तो होगा, बट मार्केट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को बताना, सेल करना, उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइंस रहेंगी? So, Nidhi, the program has been designed like this. मैं ना आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी और फिर उसके बाद में आई वुड लाइक टू ऑल्सो शो यू द एक्सटेंसिविटी ऑफ दिस बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ दिस बिजनेस, एंड आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, ताकि उसमें भी श्योर। आपको क्लैरिटी है। पर पहले जो आपने मुझसे पूछा कि हाउ डू दे सेल, वो बेचते कैसे, कैसे होता है। द प्रोग्राम इज डिजाइन इनटू 3 parts. One is only packaging, जिसको हम सिल्वर मेंबरशिप बोलते हैं। यहाँ पे आप आके पैकिंग सीखते हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। और इट इज डिवाइडेड इनटू 5 parts. पहला पार्ट है FTFF, दैट इज फास्ट ट्रैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। यू लर्न टू डू योर रिबन्स, ये वो करते हुए आप आके फिर गॉर्मे गिफ्टिंग, फिर वेडिंग, फिर फेस्टिवल्स, फिर बेबी अनाउंसमेंट्स एंड ऑल लाइक दिस। Another part is ultimate secret to success. That is a business development program, which you are doing right with me. Means आपको हर वीक की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस वीक आपको ये बनाना है प्रोडक्ट में और ये करना है बिजनेस डेवलपमेंट में। फिर आप उसको करते हो, दोबारा आप जब मिलते हो तो मैंने ये किया, मुझे ये प्रॉब्लम आई, मैंने ये किया, मुझे ये, मेरा ये वर्क कर गया, एंड देन देयर इज अ डिस्कशन, एंड देन द स्टेप 2, देन द स्टेप 3, देन द स्टेप 4। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, इट इज टीम ट्रेनिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटिंग, सेल्स, माइंडसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द माइंडसेट, बिलीव मी। आपको लगता है ये सबसे आखिरी और ये सबसे पहले है, हाँ। And write the mindset, money planning, resources, everything comes into that. And then there is a third part of to the program, that is a design part. कुछ भी सीखने से वो बिकेगा नहीं, वो आप जब एक डिजाइनर की तरह अपना एक्सप्रेशन देंगी प्रोडक्ट को तो वो बिकेगा। तो तीनों चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं, स्किल, डिजाइन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये तीनों मिलाकर एक बिजनेस बनाता है। और स्टूडेंट जनरली 6 months का जो एक पूरा पीरियड होता है उसमें कमाते हुए ही बाहर निकलते हैं। और जो डायमंड मेंबरशिप में होते हैं, जो तीनों प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे होते हैं, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो सारे स्टूडेंट्स है पैन वर्ल्ड। वी हैव स्टूडेंट्स इन अमेरिका, यूएई, दुबई, सिंगापुर, काठमांडू, कनाडा। तो ये सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज की जरूरत है, उनको कोई चीज चाहिए होती है, तो ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, देन आई एम देयर फॉर देम, सो इट वर्क्स फॉर देम। तो वो इनकम जनरेट करते हुए ही निकलते हैं। The fastest way of creating your business, and it's a step by step format. ज्ञान लेकर एक्शन नहीं किया तो वो ज्ञान जीरो है, इट इज नॉट गेटिंग यू एनीथिंग। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको उसमें एक्शन लेना ही है। मैं हर स्टूडेंट को ये बोलती हूँ, अगर प्रोग्राम के ड्यूरेशन में आपने पैसे नहीं कमाए तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। यू नीड टू एग्जीक्यूट, and that is the crux of your success. तो मेरा तो अगला क्वेश्चन यही था कि मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं ये, कैसे अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी इसके अंदर कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, और उसमें आप कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगी?
तो सबसे पहले ना निधि, वी नीड टू आइडेंटिफाई। स्टूडेंट जब हमारे पास सीख रहा होता है, फिर अगर आप लोग भी अगर किसी बिजनेस में, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, मैं कहाँ सबसे ज्यादा फिट इन होती हूँ। इज इट B2B, B2C, यानी बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू बिजनेस, ट्रेडिंग, ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग, विल आई बी अ कोच, विल आई बी अ डिजाइनर, विल आई डू अ जॉब। और जब अप्रोक्सीमेटली 3 months डाउन द लाइन हमें अपने स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाता है कि वो किस चीज में एक्सेल कर सकता है, तो फिर हम उन्हें खुद गाइड करते हैं। सिटी का भी फर्क होता है, C सिटी में है, B सिटी में है, A सिटी में है। सोशल सर्कल का फर्क होता है, कितना रिसोर्स है उसका फर्क होता है। जब आप इन सारी चीजों को इकट्ठा मिलाते हैं तो एक बिजनेस बनता है। So during the time of the teaching only, the students are, given a clear indication ki which way to take, and that is what the diamond membership is for. So before we take it, I'm going to spotlight. Nidhi, आपका question बाद में लेती हूँ। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिसे हम एक बहुत छोटा सा बिजनेस समझते हैं, गिफ्ट पैकेजिंग, how big it is. Can you switch on your video please? I will request वंश, मैं आपको अपना शोरूम सबसे पहले दिखाना चाह रही हूँ, फिर कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी कि आप मीन्स ये बिजनेस सिर्फ रैपिंग नहीं है, ये औरतों का घर का बिजनेस नहीं है। मेरे हस्बैंड, माय सन, दे बोथ आर इनटू इट। आई एम स्पॉटलाइटिंग द अदर कैमरा। वंश, कैन यू प्लीज शो? सो ये मेरा शोरूम है। कैन यू टेक द क्लोजअप्स ऑल्सो? यहाँ से हम शुरू होते हैं, ये देखिए, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर एंड जस्ट मूव एंड ये दिस डिजाइन लाइन इज कॉल्ड रासा. What this is Angan. So each product line is a different line. Can you take a little lower so that they can see it at one glance? एक पूरे glance में वो उसको देख सकें. This is a lifestyle version of gift packaging, and Vansh is really showing you very very closely. This is the design line which we made in collaboration. तो मैं भगवान कृष्ण की उपासक हूँ. This is dedicated to my Lord Krishna. And can we have a quicker round over to this side, Vansh? So, and if you look at here, this is a 1200 square feet office, and this is a more modern line, which is more tasting to the international look and feel. And यहाँ पे Eldorado है. This is, we call it Gatsby. And ये राजस्थान से hand painted आई है. So they're different. This is a very modern acrylic based molten glasses. So, and here we come with a more funkier line of garland around the water fountains, and the pop colors with acrylics, and the eco-friendly, the meadow. This is another line. And so this is the island right in the showroom where we have done a lot of. Can Chota Gaurav come? Gaurav? So now, Vansh, can you see me, all of you? I'm here. तो स्पेशल रिक्वेस्ट थी निधि जी की कि मैं आपको कुछ दिखाऊं, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ. सो आई सिट हियर. These are some hampers which is done by my team. मैंने करे भी नहीं है, मैंने इनको पेस्ट नहीं करवाया, आपको दिखाने के लिए अलग अलग. So I'm showing you all differently. A base is done. It's a simple wooden base with the print. आपको अगर then you put a मिठाई box. So bunching is also in a program कि इसमें bunch कैसे बनाना है. Bunch style 1, bunch made of no silk flowers, different, and then you put the jars over here. You make an hamper here. Then अगर दिवाली का टाइम होगा तो यही theme of pink and all will be done कैसे. ये ordinary tin boxes हैं, उनको किया गया है. ऑर्डिनरी जो किचन का ग्लास होता है उसके ऊपर एक लिड लगा दिया कि आप उसमें मेवा पैक करें, एक पोटली रख दी, एंड यू मेक. नाउ अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो लेटेस्ट मटेरियल यूसेज की बात करें. सो ये देखिए, ये मटेरियल, अभी ये जो बंच बने हुए हैं यहाँ पर, इसमें काफी चीजें लगाई हैं. मुझे नहीं लगाना है, मुझे क्विक काम करना है. सो आई हैव दिस फ्लावर हियर एंड आई ट्विस्ट इट अराउंड.
here like this, ये देखिए आप, एक आधा फूल और देना है तो वो भी दे दूंगी, and then I twist it around and my bunch is made. आप देख रहे हो ये, this is material की कलाकारी, क्या किया है मैंने राउंड राउंड। कितने पैसे देगा कस्टमर आपको इसके? Isn't it? Customer will give you a lot of money for this. और इसमें जितनी देर में मैं ये एक बनाऊंगी, मैं इसके अंदर ऐसे 4 बनाऊंगी, एंड यू जस्ट टाइट कैन बी, बास्केट ले आएंगे, इसको यूज किया है हमने वहां पे। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट आर्ट, इट्स अ सिंपल आर्ट, बट आपको नैक होना चाहिए। इसी को यूज करके दिस हैम्पर हैज बीन मेड। और अगर आप हैरान होंगे कि ये जो बॉक्स है, ये भी टिन का ऑर्डिनरी बॉक्स था, जिसको हमने जूट वूट कवर करके इस तरह से बनाया है, और ये सेल्फ एडहेसिव जूट है। एंड द सेम bunch which I taught you here, and my hamper is ready to sell. Now, अगर आप खुद कर रही होंगी ना, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है कि सेल्फ एडहेसिव जूट मुझे किधर से मिलेगा, ये इसको मैं कैसे करूं। सो दिस इज वेयर द ट्रेनिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट। अगर आप ये देखो, ये जो पोटली बनी हुई है, ये प्लेन जूट की पोटली पे आप ये कहोगे बूटा खोजेंगी मार्केट में, आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज कट आउट ऑफ द फैब्रिक, ऑलरेडी डन अ कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, वेरी सिंपल टू गेट, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। सो इस तरह से आप ये सिंपल चीजों के साथ में, ये सारी चीजें आपके शहर में मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा वहां पे। एंड देन यू मेक मनी। इफ you can sell them separately, you can sell the bunches separately, you can sell this separately, you can sell the hamper separately, and this way you create your design line. और आप लोगों में से जो उदयपुर, थैंक यू Spansh, I'll spotlight myself and thank you so much. सो आप में से जो लोग उदयपुर से हैं, जो लोग राजस्थान बेल्ट से हैं, वो तो क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं, वो एरियाज क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं। आप अपने शहर में तो जो बेचेंगे सो बेचेंगे, आपके लिए तो पूरी दुनिया गेम है। बिलीव मी, इट्स अ बिग बिजनेस। मैंने राजस्थान के ऊपर बहुत काम किया है। चूरू से हैं हम लोग, खेमकास की डॉटर हूँ मैं, तो I have worked on coal lacquer work, I have worked on नाथद्वारा's मीना, I have worked on marble paint के ऊपर मैंने बहुत काम करा उसको लेके। तो what I wanted to show you here was कि ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये बिजनेस को बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रैटेजी, बिना जाने कि इसको ग्रो कैसे करना है, तो 10-20 हजार रुपए कमा के आप हैप्पी होंगे। तो मेरे को ना, मैं कंसल्टेंट हूँ, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको। एक बिजनेस फोरम में मैं बात कर रही थी, और मैंने उनको मिठाई वाले थे सारे उस फोरम के अंदर, और मैंने उनको बता रही थी कि भी कैसे पैकेजिंग से आप अपने टर्नओवर्स को बढ़ा सकते हैं। किसी ने कहा शालिनी जी, मैं तो अभी भी करोड़ों के टर्नओवर कर रहा हूँ, तो मैं पैकेजिंग बढ़ाऊंगा, क्यों मैं आपको कंसल्टेंट लूंगा? तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि आपके बिजनेस का स्कोप है कि वो आपको 1000 करोड़ दे सकता है, और आप कमा रहे हैं 10 करोड़, और आप उसमें खुश हैं, तो भैया राधे राधे। लेकिन आप अपने आप से अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1000 करोड़ के बिजनेस में मैं 10 करोड़ ले रहा हूं, बाकी कहाँ है, मुझे वो भी लेके आना है, then I'm a game here. Otherwise it is absolutely all right. तो आपकी जिंदगी में आप किससे संतुष्ट हैं? That is the crux. You want to grow at what level? That is the crux. तो आप घर से काम करके, मैंने घर से काम किया, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी थी, मेरे बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना था, मेरे खुद के खर्चे बहुत थे, बहुत बड़े घर की बहू बनी मैं, बहुत बड़े घर की बेटी थी। तो मैंने तो पहले बोला कि भैया मुझे तो 5 लाख रुपया महीना कमाना है, 2002 की बात बता रही हूँ, 5 लाख रुपया महीना प्रॉफिट चाहिए। उस समय में भी 25 लाख की सेल पे मुझे 5 लाख रुपया आता, घर में खाने को पैसे नहीं थे, बिलीव मी। सो आई प्लान्ड माई बिजनेस कि मुझे रिचेस्ट ऑफ द रिच कस्टमर चाहिए, ये कस्टमर मुझे कहाँ मिलेगा, ये कस्टमर मुझे कहाँ से शॉपिंग कर रहा है, इंडिया में ये कहाँ से जा रहा है, वो मुझसे क्या खरीदेगा, सब चीज को प्लान करके मैंने जब इस बिजनेस को क्रिएट किया। सो आई हैव वर्क फॉर नीता अंबानी, वंदना लूथरा, ZTV, एक्शन शूज, एयरटेल, वैद्यनाथ, एवरीबडी, प्रैक्टिकली एवरीबडी। तो अगर वो प्लानिंग नहीं करी होती तो ऐसा नहीं होता। नाउ द थिंग इज, if you want this all to inherit, कि भाई जो मैंने ये सारा इस
20-23 साल में करा, वो आपको 6 महीने में मिले तो आप इस प्रोग्राम को करो। लेकिन अगर आप उसी ट्रायल एंड एरर की जर्नी से जाना चाहते हैं तो ये भी एक चॉइस है, कोई गलत या सही कुछ नहीं है, आप वो भी आराम से कर सकते हो एंड देन यू डू दैट अबाउट, सो दैट्स योर जर्नी। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि हाउ बिग इज द इंडस्ट्री, और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत है इसके अंदर, हजारों हैं। 2000 स्टूडेंट्स को तो मैं ट्रेन कर चुकी हूँ जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ जी निधि। तो शालिनी जी, 2000 स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की आप जर्नी बता सकती हैं जो आपको याद हो, जिसने जिसने जिसके मतलब आपने जिसकी लाइफ को चेंज किया हो? नहीं तो सभी की लाइफ है, तो मैं ये कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू इज आई विल यू नो शेयर यू माय इंस्टाग्राम हैंडल्स आल्सो एंड यू कैन शेयर देम इन द ग्रुप एज वेल। तो उससे क्या होगा, मेरे को लगता है ग्रुप में शेयर कर देते हैं अपने उसको, कि आप वहां पे जाएं, अच्छा, एंड मिलें। और उसमें बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। तो एक जयपुर की लड़की है शिखा, और अगर आप उसको देखोगे 4 दिन पहले उसने सजावट द डेकोर स्टूडियो उसका ब्रांड है। और वो लड़की जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको इंस्टा पे लेकर आई थी तो मुझे पौने घंटा लग गया था उसको सिर्फ ये सिखाने में कि हाउ टू सो हेलो एंड हाउ टू बी देयर। आज उसने अभी लास्ट वीक एक पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन देकर आई है, शी इज इनवाइटेड एज अ जज। मनीषा वाह। जयसिंह बॉम्बे की स्टूडेंट है हमारी, बड़ी खूबसूरत, वो अपनी ब्रांड को इंग्लैंड में लॉन्च कर चुकी हैं। उन्होंने कल अंबानी हाउस में अपना गिफ्ट लेकर गई हैं, और वहां पे शी इज ऑलरेडी पैकिंग फॉर शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, एंड शी इज डूइंग ऑल दैट। तो ऐसे तो बहुत है, नियति व्यास गांधी धाम में, वो सारी क्लास में ये रोती रहती थी, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मैं और वो जितनी ब्यूटीफुल नहीं लगती हूँ, ये है वो है। टुडे, आज वो इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो 600 लोगों की एक मीटिंग के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है वहां पे। सो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, ढेरों ढेर। देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ईच वुमन, मैं ये मेरा ये मानना है कि इन्होंने तो खैर बहुत सारे जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया, एक वुमन हु इज अ मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई ना यार, इट इज डन, इट इज डन डील। वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक बन गई। सो देयर आर, और फिर हमारे डायमंड प्रोग्राम में तो हम किसी को जाने ही नहीं देते हैं। मींस आपका प्रोग्राम, हम उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग ऑफ 6 मंथ्स, कि एक्टिव लर्निंग के बाद में भी आप हमारे साथ उस ग्रुप में हैं, यू आर इन टच विद अस, तो वी आर ऑलवेज ट्रैकिंग यू डाउन कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। स्टूडेंट्स भी अपना शेयर करते रहते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ ग्रोइंग टुगेदर, यू नो। वो सिर्फ ग्रो नहीं हो रहे होते, मैं भी ग्रो हो रही होती हूँ एज अ कोच, एज अ टीचर। आई एम ऑल्सो ग्रोइंग इन दैट स्पेस। यस निधि। शालिनी जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना अच्छा आपने मोटिवेट किया सबको। और मुझे लगता है जितनी लेडीज ने भी ज्वाइन किया उनके दिमाग में कहीं ना कुछ आइडियाज तो हैं ही कि उन्हें अपनी लाइफ को लेके आगे कैसे जाना है। बट स्टिल, व्हाई यू एंड व्हाई नाउ? या तो मैं आपको निधि जी एक ही बात बोलूंगी इसके लिए, व्हाई मी एंड व्हाई नाउ। सो एक मेरा नीश है विच इज गिफ्ट पैकेजिंग एज अ क्राफ्ट, एंड एक दूसरा मेरा नीश है मार्केटिंग एंड सेल्स एज अ होम मेकर टू होमप्रेन्योर। तो अगर मैं कहती हूँ व्हाई मी, तो मैं आपको, जो होम मेकर से होमप्रेन्योर बनना चाहता है उसके लिए मैं हूं, क्योंकि मैंने खुद ने वो जर्नी की है, फिर बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की, और ये जाना कि ये कोर्सेज हम होम मेकर्स के लिए सूटेबल नहीं है। हम MIS शीट्स, हम फ्लो चार्ट, इतनी टेक्निकल चीजें नहीं कर पाते हैं। हमारे छोटे बिजनेसेस शुरू होते हैं, हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। सो हमें चाहिए जुगाड़ मार्केटिंग, हमें चाहिए एक सपोर्ट सिस्टम। सो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, वहां पे। और फिर वो जर्नी जो मैं, आप जिसमें आज जो जिंदगी जी रही हैं वो मैं जी चुकी हूँ या जी रही हूँ। तो ये कट पेस्ट गूगल प्रोग्राम नहीं है
कि गूगल से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको एक अच्छी वक्ता हूं मैं, एक अच्छा बोल लेती हूँ, तो मैंने उसको किया। दिस इज माई लाइफ क्रक्स, दैट इज वाई इट्स मी एंड वाई आई से नाउ। अभी क्यों करना है? अपॉर्चुनिटी लॉस। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-2 साल तक मुझे फॉलो किया और 2 साल बाद प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि, और फिर बाद में खुद कहते हैं, मैं क्या कहूंगी कि शालिनी मैम अगर हमने 2 साल पहले कर लिया तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच चुके होते। तो ना ये हमारा जो मन है ना, ये भटकता है। पहला स्टेप मुश्किल होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट। ट्रेन चलती है धीरे धीरे, and then and then it goes. So my teacher says escalator पे एक बार पांव धरा ना शालिनी, हटाना नहीं है, then move fast. So मैं ये कहती हूँ now मतलब doesn't mean, now means जो भी आपने जिंदगी में अभी करना है, don't wait, do it. मन में शंकाएं, मन में चिंताएं, मन में हम ना, ये जो वर्ल्ड इनसाइड एंड वर्ल्ड आउटसाइड, एक पूरी दुनिया आपके अंदर है जो सोचते हो, और एक पूरी दुनिया आपके बाहर है जो आपको सारा टाइम हिट कर रही होती है। इट इज हिटिंग यू ऑल द टाइम, हिटिंग यू ऑल द टाइम, और आप उसके प्रभाव में होते हैं। लेकिन जब आप एक बार स्टेप लेके आगे चले जाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप प्रोग्रेस की तरफ होते हो, नहीं तो ये आपको बढ़ने नहीं देता। सो टेक इट नाउ, टेक इट अहेड। अकेले में डर लगता है, बिलीव मी, व्हेन यू आर टुगेदर इन द ग्रुप एंड टू द सेम जर्नी ऑन टू द पाथ, it's much easier. So do it now. तो now का मतलब ये नहीं है कि होश नहीं है या सिर्फ जोश में है, पूरे होश में, knowing your capacities, knowing your capabilities. We don't take students in without the interview. आप मुझे पैसे देंगे तो भी मैं आपको नहीं लूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम मना कर देते हैं कि नो, यू आर नॉट सुटेबल फॉर आवर कोर्स और आवर प्रोग्राम। कोई जना सिर्फ चॉकलेट बना रहा है और वो चॉकलेट पैकिंग सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए मैप का प्रोग्राम सूटेबल नहीं है। मैप का बिजनेस प्रोग्राम सूटेबल है। सो व्हाट इज सूटेबल टू यू, दैट ओनली विल बी, यू विल बी एनरोल्ड फॉर दैट ओनली। तो अगर आज आप इस वेबिनार में हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ग्रो करने की इच्छा है, कहीं ना कहीं यू वांट टू become, you want to take a second step in your life, you want to elevate your life standard, then why wait for it? किस लिए? तो इट्स अ वेरी, अगर मैं पहले सोचती रह जाती, अगर मैं उस दिन शायद ट्रेन नहीं पकड़ती कानपुर से, तो वहीं रह जाती। So you have to take a decision of your life, and there is no moment to come. This is the moment to come. ये पल है जीवन का, पता नहीं कल होगा भी कि नहीं होगा। So whatever you need to do it at this moment only. That is why I say always, why me and why now? Yes. अगर कोई खुद को एनरोल करना चाहे इस प्रोग्राम के बाद, आगे फर्दर नॉलेज लेना चाहे, इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो उसको क्या करना है? इस वेबिनार के बाद उसको क्या करना चाहिए? if anybody wants to तो enroll अंजू जी फर्स्ट, बिकॉज ये आपके गेस्ट हैं, तो they will be in touch with you and we will share the documents and all, websites and all with them. They will get familiar with me and the whole system कि क्या है क्या नहीं है। जैसे आपने कहा पर्सनल ब्रांडिंग, वो उसको स्टडी करें, और जिस बिजनेस में वो जाने को सोच रहे हैं उसको भी स्टडी करें, एंड देन वी विल हैव 1-to-1 विद देम एंड देन एनरोल देम। आप में से किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो पूछ लीजिए, फिर विल कम टू एंड। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? आपके बिहाफ पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन पूछे, आई थिंक सबको जवाब मिल गए। तो फिर भी कुछ अगर दिमाग में हो, कुछ और आ रहा हो, तो प्लीज गो अहेड। So will you अंजू, like to, anybody want to share anything, any experience? You are most welcome to. Am I audible? yes you Am I are. audible? Okay. Who is Good it? evening, everybody. It's me, Anju Dr. Giri. Anju Giri. It's me, Dr. Anju Giri. Yes, Anju ji. Am I audible, Shalini Yes, madam? you are audible, Anju. Okay. Hi, everybody. It's me, Dr. Anju from Udaipur. And I have no idea कि ये जो भी हम लोगों को आज ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आज, शालिनी जी और निधि जी, आई एम हाईली obliged from all of
हम सबकी ओर से थैंक यू सो मच। हमें सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये कहना और पूछना चाहती हूँ कि आपका जो भी डिटेल्स हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, है ना। अभी मेरी एक स्टूडेंट है पलक चौरसिया, से हाय पलक, शी इज देयर। तो सम ऑफ द यंग पर्सन्स आर हेयर जो एक्चुअल में इतने ही एनर्जेटिक हैं, और आपका सेशन, आपके वर्ड्स एग्जैक्टली, इट वाज डायनेमिक सेशन। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह के स्टूडेंट्स का भी हम एक बंच बनाएंगे और आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बॉम्बे से हैं पलक। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, इस तरह का क्या आप मंथली या 6 मंथली या कोई लिंक है जो शायद निधि जी ने शेयर भी किया होगा कि आपकी एज एनरोल करवा सकते हैं वो आपके ब्रांड के अंडर। क्लासेस हैं अंजू, क्लासेस हैं। ये कोच करेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो और आप एनरोल कराते हैं खुद को, तो उस पे शालिनी जी आपको सब सिखाएंगी। सो अंजू जी का एक और है। सो अंजू जी, इफ यू वांट अस टू एजुकेट मोर पीपल द सिमिलरली, एंड ऑफ कोर्स निधि और मैं दोनों उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, कोर्स को करना सेकेंडरी है राइट नाउ। पहले हम अपने आप को तैयार करें, राइट, दैट यस दे मेरी लाइफ है और मैं इसको आगे लेके जाना चाहती हूँ। प्रोग्राम वो लड़कियां करती हैं, वो विमेन करती हैं जो बिना टाइम को वेस्ट करें, दे वांट टू ग्रो फास्टर विद एन एक्सपीरियंस, कि भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है तो ट्रायल एंड एरर नहीं होगा और आप साथ में फटाफट फटाफट ग्रो करते हुए चले जाते हैं। तो फीस के पैसे तो लगते हैं, लेकिन जब आप ट्रायल एंड एरर के साथ कर रहे होते हैं तो आपका टाइम भी ज्यादा लग रहा होता है और आपकी मनी मटेरियल में वेस्ट हो रही होती है। टाइम लॉस भी एक पैसा ही है, दैट इज ऑल्सो अ मनी। सो लेकिन मेरे को ये लगता है कि कोर्स को करना या नहीं करना, लेकिन अगर हम किसी 10 15 20 जनों को भी इंस्पायर कर पाते हैं कि वो अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें, वी मी एंड निधि वी ऑल विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दैट, नॉट एन इशू। एग्जैक्टली। तो सम ऑफ द नाउन्स आर हेयर, मैं डेफिनेटली निधि मैडम को बताऊंगी। पलक अभी आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पलक चौरसिया, जी ये जी। बॉम्बे से हैं, पर मैंने इनको कहा है कि इट वाज, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा, ये सेशन आप अटेंड करें। हाउ डू यू फील पलक चौरसिया? आई फील गुड, कुछ नॉलेज मिलेगी। तो इसी तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं। एक्चुअली मैम पर्टिकुलर आई एम इन द मेंटल हेल्थ सेक्टर, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड सर्विसेज। मेंटल हेल्थ में फर्स्ट एड सर्विस का काम मेरा है, मैं तो उसी तरह का काम करती हूँ। पर आपका जो सेशन था, इसमें बहुत अच्छी एक लाइन मेंशन की गई थी। इट वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी इंप्रेसिव फॉर द ऑडियंस, एंड जो भी ये मैसेज जा रहा था कि ना, अगर आप घर बैठे कैसे कर सकती हैं, ये जो लाइन थी ना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव। इसलिए मुझे ये लगा कि ये सेशन मुझे देखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसी क्लाइंट्स हैं जो एक्चुअल में आपसे जुड़ना चाहेंगी। तो मैं आपका लिंक, आपका नंबर, आपका कनेक्शन निधि मैडम का उनको दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। So thank you so much, and this is for all the women here. Anju ji, thank you so much for your जी kind words also. जी जी मैप के इनसाइट और निधि, हमने जो ये कैंपेन लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो एक है कि आपने बिजनेस करना है, दूसरा अगर आप चाहें सो मैप कोलैबोरेटर बन सकते हैं, एंड यू कैन स्प्रेड इट ऑल अराउंड इंडिया, ऑल अराउंड वर्ल्ड। और उसके अंदर एक हम पार्टनरशिप आपको ऑफर करते हैं, एंड निधि जी इज द राइट पर्सन टू कनेक्ट फॉर दैट। निधि अपना नंबर शेयर कर देंगी ग्रुप में दोबारा, और आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि निधि के साथ में आप किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे टू अर्न मनी। तो That's wonderful. हाँ, मेरा कहने का अभिप्राय क्या है आपको, टुगेदर वी कैन क्रिएट द होल वर्ल्ड, राइट। और मैं हमेशा कहती हूँ पैसे कमाने आसान है, पैसे संभालने मुश्किल है। I always say that to everybody. लोग मानते नहीं है मेरी बात, but this is what I tell everybody. It is easy to earn money. It is difficult to manage money. So thank you so much, Nidhi ji. सबसे पहले thank you so much for inviting me here, and thank you so much आप लोग जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे सुना, and it's a very humbling experience, and मैं आप में से किसी के भी काम आ सकूं, so thank you so much. Mutual feelings, ma'am. Mutual feelings. Thank you so much. Bye bye, everybody. Thank you Thank you. so much, Shalini ji, for sharing your wisdom and energy with us today. To all the amazing women listening right now, if you have been sitting there thinking, can I really do it? Can I really build something of my own? So let me tell you, yes, you can. Shalini ji has just showed us that it is not having all the answers or a big investment. It is just about taking first step with the right guidance and the right mindset.
I started this initiative because I believe every homemaker has untapped potential, whether it is creativity, resilience, or the ability to manage 100 things at once, which you True. already have the skills. Now it's time to transform them into a business. And if there is one thing I have learned, it's that success doesn't happen alone. Having a mentor like Shalini ji who has walked the path and knows the industry can save your months, even years of trial and error. So, if today's session sparked something inside you, if you felt that little voice saying, maybe this is for me, I encourage you. Rather, I invite you to join Shalini ji's sales and marketing program. It's designed for women just like you to turn your passion into profits because your dreams deserves to be more than just dream. Thank you once again, Shalini ji, and thank you for being here. Let's take this journey of empowerment together. See you inside the program. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank Have you. a good day. Shalini ji, Nidhi ji, inviting us. Thank you, Poonam ji, for